Morning class. Today we are going to study chapter number 1, class notes 1, business environment. Here we first study what is the business environment. Okay? What is the business environment, definition of business environment. But before that, we have to understood what is the business. In class 11, we studied about the business. But now here again we will study about business. Business means production and exchange of goods and services for the earning profit is being called business. Production and exchange. Production means buying a raw material and process it into finished goods. That is the meaning of production. Exchange means simple buying and selling of goods. Exchange means लेना देना, कुछ पैसा दे के हम कोई चीज परचेज करते हैं. That means exchange. Clear है? Means लेना और देना. Clear है? Meaning is here production and exchange of goods and services for the object of earning profit is being called business. Clear? Now here second point is environment. Anything which affects a business enterprises is being called that environment. That business environment which is connected to that business is being called business environment. Clear है? That is the environment. वो environment जो business को directly और indirectly affect करता हो, that is the environment. या वो चीजें या वो एक्टिविटी जो बिजनेस को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अफेक्ट करती है वो बिजनेस का क्या होता है, एनवायरमेंट होता है. क्लियर है? अब यहाँ एक डेफिनेशन आता है बिजनेस एनवायरमेंट का. द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल एंड अदर फोर्सेस. द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल एंड अदर फोर्सेस दैट लाई outside of a business enterprises but that may influence the functioning and performance of a business enterprises. That is being called business environment. Here first point is all individual, institutional and other forces. Dear student, one thing I want to discuss with you. Last 4 or 5 years I am working as an assistant examiner. Means I am correcting ISC board paper of commerce subject. Clear है? So on the basis of that experience I am saying to you what I am teaching you on that basis. Clear? So here the first point is all individual institution and other forces. Our second point here is lie outside. Third point is here is influence oblique effects. Fourth point is functioning and performance of a business enterprises. Clear है? All institution, all individual institution means individual means like me. I am a individual, but our central school is a institution. Clear? Here is saying that lie outside of the business enterprises. वो individual, वो institution, ठीक है, या वो other forces जो किसी business enterprises को बाहर से अफेक्ट करते हो. ठीक है? अफेक्ट इन्फ्लुएंस इट्स फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस. फंक्शनिंग मीन्स अब बिजनेस का काम क्या होता है जनरली? गुड्स बनाना या गुड्स बनाना और बेचना. क्लियर है? या तो गुड्स बना के बेचेगा या तो खरीद के बेचेगा. ट्रेडिंग का काम करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा. ठीक है? वो आपका बिजनेस होगा. तो उसके फंक्शनिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग के फंक्शनिंग पे जो इम्पैक्ट डालता हो, अफेक्ट करता हो, और उसके परफॉर्मेंस पे. क्लियर है? परफॉर्मेंस क्या होता है? व्हाट इज द परफॉर्मेंस मींस रिजल्ट. रिजल्ट परफॉर्मेंस विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव. यानी बिजनेस एनटरप्राइज क्या होगा? या तो प्रॉफिट में जाएगा या तो लॉस में होगा. क्लियर है? तो हियर द डेफिनेशन इज ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस दैट लाई आउटसाइड ऑफ एन बिजनेस एंटरप्राइजेस that may of many affects the influence affects functioning and performance of the business enterprises. Clear? I hope all of you get understand what is the definition of business environment. Now we have to study our next topic, features. Clear है? Here is given 6 features and here is given 6 importance. Clear है? Right? Okay. Here is the first point, totality of external forces. Second one is general and specific. Third one, interrelatedness, complexity, dynamic and uncertainty. Clear? Now first point we will here we will learn what is the features. Features में first point totality of external forces. फर्स्ट पॉइंट कह रहा है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज मींस जो बिजनेस के एक्सटर्नल फोर्सेज हैं
वो सब मिला के बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ये बिजनेस का एक फीचर है। बिजनेस का एक फीचर क्या कह रहा है? टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस बिजनेस के कौन कौन से हैं? जैसे कंपटीटर, बायर, सेलर, ठीक है ना, या कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल सिचुएशन विच इज आउटसाइड ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइजेस। क्लियर? तो ये क्या कहता है? टोटलिटी, यानी सम टोटल, सब लोग मिलके जो बिजनेस को इफेक्ट करते हो वो क्या हो गया? टोटलिटी एक्सटर्नल फोर्सेस हो गया। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सेकंड में जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल स्पेसिफिक फोर्सेस में ये बताते हैं, ये जनरल में जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करे या इन्फ्लुएंस करे बिजनेस को। क्लियर? स्पेसिफिक फोर्सेस मीन जो जनरल मीन्स जो इनडायरेक्टली करे, स्पेसिफिक मीन्स जो डायरेक्टली करे। क्लियर? जनरल मीन्स जो इनडायरेक्टली करता है वो क्या हो सकता है? पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन किसी कंट्री के चेंज हो जाए उसमें दिक्कत आ सकती है, या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो, गवर्नमेंट चेंज होती है उससे बिजनेस को जनरल अफेक्ट पड़ता है, लीगल कोई रूल एंड रेगुलेटरी कोई फ्रेमवर्क चेंज हो गया हो। क्लियर है? जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री है, कोई रूल नहीं आ गया हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ रूल नहीं आ गए हो, उससे बिजनेस के इफेक्ट पड़ते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस में क्या आते हैं हमारे? स्पेसिफिक फोर्स में जिससे बिजनेस मैन या बिजनेस हाउसेज डायरेक्ट कनेक्टेड हो। जैसे बिजनेस हाउसेज जिसको गुड्स बेचते हो, गुड्स किसको बेचेगा? गुड्स अपने कस्टमर को बेचेंगे। क्लियर है? यानी डेटर को बेचेंगे, और परचेज करेंगे किससे? सप्लायर्स। क्लियर है? ये दो लोग क्या हो सकते? डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कस्टमर लाइक कस्टमर एंड सप्लायर्स। दिस पॉइंट इज नाउ क्लियर। जनरल मीन्स विच इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड, स्पेसिफिक मीन्स विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड। जनरल में कौन कौन से आएंगे? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और रूल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। क्लियर? स्पेसिफिक में कौन आएंगे? स्पेसिफिक में आप आएंगे सप्लायर्स, आपके मिडिल मैन, वो जो एजेंट होते हैं जिनके थ्रू हम गुड्स परचेज करते हैं, वो थर्ड पर्सन, और आपके कस्टमर आएंगे। क्लियर है? ना हियर इंटर रिलेटेड नेट। अब ये क्या है कि सब कुछ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्लियर है ना? ये सारे के सारे एक दूसरे से, बिजनेस में कोई भी चीजें होती है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। क्लियर? थर्ड पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी। ये बिजनेस का जो कंडीशन होता है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसे पता नहीं होता है किसी को कब कैसे कहाँ किस तरह से चेंज हो सकता है। ठीक है ना? नया नया फैशन आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी आती रहती है, पॉलिटिकल चेंजेस होते रहते हैं। इसलिए जो बिजनेस के कंडीशन होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, सब कुछ अनसर्टेन होता है, कुछ कह नहीं सकते। क्लियर? अब आ गया फिफ्थ पॉइंट इज डायनामिक। डायनामिक में ये क्या कह रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा जो होता है चेंज होता रहता है। कुछ आज यहाँ सपोज करो आपके मोबाइल में ले लो, मोबाइल में तो कोई फिक्स तो है नहीं, देयर इज नो एनी फिक्स टेक्नोलॉजी इन द मोबाइल। वो टुडे इज दिस वर्जन, आफ्टर 1 मंथ विल बी अनदर वर्जन। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है अनसर्टेनिटी। अब बिजनेस ऐसा है कि बिजनेस का फ्यूचर जो है बिल्कुल अनफॉर्सीन है, कुछ कह नहीं सकते कब क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है। क्लियर है ना? तो ये बिजनेस का लास्ट वन फीचर क्या है? अनसर्टेनिटी। कुछ फिक्स नहीं होता है बिजनेस में। ठीक है? तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस। क्लियर? Here we are going to study about the importance of the business environment. Here is given 6 importance of business environmental. First importance is first mover advantage. ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है? अर्ली अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू द कंपटीटर। क्लियर है? कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई भी नया बिजनेस, कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट अगर पहले अडॉप्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर देता है तो क्या होगा? पहले बेनिफिटेड होगा, उसको मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर हैं, कोई और कंपटीटर उसका वो बिजनेस अडॉप्ट को उस बिजनेस प्लान को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जो पहले उस प्लान उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा वो ज्यादा बेनिफिटेड होगा। थर्ड कह रहा है अर्ली वार्निंग सिग्नल। ये अर्ली वार्निंग सिग्नल एक इंपॉर्टेंस है किसका? बिजनेस एनवायरनमेंट का। ये क्या करता है? ये बिजनेसमैन को प्रिपेयर करता है फॉर अनफॉर्सिन कंटिजेंसीज के लिए। वो कैसे प्रिपेयर करता है कि थ्रू अर्ली वार्निंग सिग्नल वो क्या करता है? बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस करके हर चीज का एनालिसिस करता है। ठीक है? एनालिसिस करके बिजनेसमैन को बताता है कि आपको इस एरिया में प्रॉब्लम है, इस एरिया में आपको ये वीक पॉइंट है और ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो उस हिसाब से वो बिजनेसमैन या बिजनेस हाउसेस अपने आप को प्रिपेयर करते हैं
किस चीज के लिए कि फ्यूचर में कोई अनफॉर्चुन कंटीजेंसी उन्हें फेस ना करना पड़े, कोई बिजनेस को एडवर्स इम्पैक्ट या इफेक्ट ना हो। थर्ड वन इज कस्टमर फोकस। किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? गुड्स सेल करना। और गुड्स किसको सेल करेगा? वो कस्टमर को सेल करेगा। तो गुड्स प्रिपेयर कैसे करेंगे हम? ऑन द एक्सपेक्टेशन एंड नीड्स ऑफ द कस्टमर। क्लियर है? इसलिए कस्टमर के एक्सपेक्टेशन एंड नीड्स को ध्यान में रखते हुए बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन विल सेट देयर प्लान। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट कलर स्ट्रेटेजिक फॉर्मूला। स्ट्रेटेजिक फॉर्मूला में क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करता है किसको? इन्वायरमेंट को। बिजनेस बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैन करता है इन्वायरमेंट को। अब वो इन्वायरमेंट है कौन सा? ऑलरेडी वी स्टडी अबाउट द इन्वायरमेंट विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस। क्लियर है? दैट इज द इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट आपके पॉलिटिकल हो गए, लीगल पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर हो गए, सोशल फैक्टर्स हो गए, सप्लायर हो गए, कंपटीटर्स हो गए, मिडिल मैन हो गए। क्लियर है? तो स्ट्रेटेजी फॉर्मूले से स्कैन करके एक पॉलिसी बनाते हैं, डिसीजन बनाते हैं। ठीक है? so that a business also run smoothly. That is the fourth importance of the business environment. Now fifth one is coping with the changes. अब बिजनेस लीडर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस लीडर वो अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं। किस चीज के लिए ट्रेन करते हैं? कि कोई भी डायरेक्शन चेंज हो, कोई भी आपके स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में कोई भी चेंजेज आए, क्लियर है ना, तो उस चीज को हम इजिली अडॉप्ट कर लें। कोई भी रूल रेगुलेशन चेंज हो, उससे हम उस रूल रेगुलेशन को हमारे स्टाफ इजिली लर्न कर ले। ठीक है? और एनी प्रोसीड्यूरल डिलेज वी एवरीवन विल बी हैंडल दैट प्रॉब्लम। क्लियर है? अब वो एक चीज और आता है, एक तो हो गया आपका अपने स्टाफ को ट्रेन करना, और सेकंड वन इज प्रोडक्ट को अच्छे से बनाना। प्रोडक्ट को अच्छे से बनाएंगे क्यों? क्योंकि वो कस्टमर पे डिपेंड करता है ना, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन एंड नीड्स। ठीक है ना? यानी कस्टमर के नीड्स एंड एनी इन्वायरमेंटल चेंजेस। उसके साथ हमें क्या करना पड़ता है? बिजनेसमैन को अपना बिजनेस उसके अकॉर्डिंग डेवलप करना पड़ता है या फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है। क्लियर? सिक्स वन इज पब्लिक इमेज। अब पब्लिक इमेज मतलब कि इनडायरेक्टली वी कैन से दिस इज द गुडविल ऑफ अ कंपनी। पब्लिक इमेज मीन्स दिस इज द गुडविल ऑफ ए कंपनी। कोई भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, अब वो अपने कस्टमर को कितना बेनिफिट देता है, किस तरीके से देता है। क्लियर है? तो ये कंपनी की गुडविल होती है जो धीरे धीरे आफ्टर सम ईयर मार्केट में वो प्रॉब्लम फेस करने के बाद से वो कंपनी वो गुडविल जनरेट करती है, मैनेज करती है। क्लियर है? तो कंपनी को क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिव होना चाहिए? अपने कस्टमर के लिए सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। और कंपनी शुड बी sensitive and responsive for their customer. Okay? Okay, dear. Now this is the end of chapter class notes 1 of chapter 1 business environment. Now we will study our chapter number 1 class note 2 in our next video. Thanks.